Hello everyone, welcome back to my channel. In the last video, we have discussed the key facts, characters and act first of the play Candida. And in this video, we will discuss the summary of act second and act third in English and then in Hindi. Let's start the video. Act second. The scene opens in the same room, the same day in the afternoon. Prosy is annoyed because Marchbanks is fiddling with her typewriter. She asks him if he was writing a love letter. At this, Marchbanks asks her if she has ever written love letters. Marchbanks perceives that Prosy is secretly in love with Morel and asks Prosy if it is really possible for a woman to love someone like Morel. When she answers yes, and she confesses that she is in love with Morel, Eugene is miserable. Now Burgess comes in. Prosy feels relieved. But Eugene again irritates her by saying that she is too low class to socialize with him. Prosy then leaves the room. Burgess now takes the opportunity to warn Marchbanks about the danger of Morel's progressive ideas. In his opinion, his son-in-law Morel is insane and has always been mad. At this time, Morel comes in and says that Candida will join them after filling the oil in the lamps. Eugene Marchbanks, who is disturbed at Candida's filling the oil in the lamps, says in anger that he will make his wife do a dirty piece of work with his beautiful hands. When Candida comes in, Marchbanks offers to do all the rough work in the house for her and says that he longs for a world where she would never have to scrub the floor or filling the oil in the lamps. Morel says that this sort of imagination is an escape from the world and an idle, selfish and useless dream. Here Miss Prosy comes in with a telegram for Morel. Morel writes out his reply to the telegram and goes out. Candida takes Eugene Marchbanks to help her in household for peeling and slicing onions. Thus, there remain Burgess and Prosy in the room. Prosy tells Burgess that Eugene Marchbanks is a mad boy. Now convinced that the whole house has gone mad, Burgess goes out for a walk. Morel comes in. He asks Prosy why she called his father-in-law a silly old fool. She only gets into tears and runs from the room sobbing. Morel sits down at his desk to work on a sermon. Candida enters and she stops Morel from work, saying that he has grown thinner because he had been working hard in her absence. She also advises to give up going for lecturing because people do not do what he tells them to do. Morel says that they come to the church because they are interested in socialism and religion. To this, Candida says that no other place of amusement is open on Sundays, so they cannot go anywhere else. She further says that they come because they like you, they love you, especially the ladies, and Prosy is one of them. He asks what does she mean. Candida replies that Prosy loves him and this is the reason why she works with him on a lesser payment and does all the odd jobs. Morel is shocked and he regards her views as cynical. He then inquires of her if she is not jealous of anybody. Candida then tells him that she is worried about Eugene Marchbanks because she suspects that he is about to fall in love with her. Her hints that she might be ready to put aside her morals in the case of Eugene Marchbanks. This movement shakes Morel. Candida laughs at her husband's harsh reaction and asks him to trust her love for him. About this time, Marchbanks and Burgess enter. Marchbanks inquires what the matter is. Morel replies that either he, means Marchbanks, was right in the morning or Candida is mad. Here Burgess cries. Candida then replies that everything has been smooth so long she has obeyed him blindly, but the moment she shows her disagreement, he is shocked. Morel feels distressed. Eugene grows concerned at Morel's suffering.
He says to Candida that she had made him suffer, and he can feel his pain in his own heart. Candida says that she has no intention to torture Morel. Candida then asks Morel to give up work and talk to them. In the meantime, Lexi Mill comes. Lexi tells Morel that the Guild of St. Matthew were greatly upset on receiving his telegram declining their invitation for a talk to them. Lexi urges his boss to change his mind. Then all of them persuade him to go for a talk. But Morel declines that again, saying he must have one night at home with his wife and his friends. But Candida insists on his going and suggests that all of them shall go with him. Now all of them agree to go. Morel then asks Burgess and Lexi to come with him, but he tells Candida to stay at home to give company to Eugene Marchbanks. Act 2 ends here. Now let's discuss it in Hindi. Act 2. सीन उसी दिन दोपहर का है। मार्चबैंक्स अकेला बैठा प्रॉसी के टाइपराइटर को ऑन करने की कोशिश कर रहा है। उसी टाइम प्रॉसी वहाँ आती है और प्रॉसी मार्चबैंक्स से पूछती है कि क्या वह लव लेटर टाइप कर रहा था। इस पर मार्चबैंक्स उससे पूछता है कि क्या उसने कभी कोई लव लेटर लिखा है। प्रॉसी को इस सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वह किसी दूसरे सब्जेक्ट पे बात करना चाहती है। तो इसी तरीके से दोनों की बातचीत चलती रहती है और लास्ट में प्रॉसी ये एक्सेप्ट करती है कि वह मोरल को प्यार करती है। बर्जेस सब वहाँ आते हैं और वो मार्चबैंक्स से कहते हैं कि उसके पास कोई भी बात करने के लिए नहीं था बजाय सिवाय इस टाइपिस्ट प्रॉसी के। अब इस बात पे प्रॉसी को बहुत ही इंसल्ट फील होता है और वह बर्जेस को सिली ओल्ड फूल कहती है। अब मॉरल वहाँ आता है। बर्जेस मॉरल से प्रॉसी की शिकायत करता है कि प्रॉसी ने उसको सिली ओल्ड फूल कहा है। इस पर मॉरल उसको बर्जेस को कहता है कि वो प्रॉसी की बातों पर ध्यान ना दे। बर्जेस अब रात के खाने या खाने की तैयारी के बारे में पूछता है तो मॉरल बताता है कि कैंडिडा अभी लैंप्स में ऑयल डाल रही है, तेल डाल रही है और वो जल्दी ही उन सबको ज्वाइन करने वाली है। मार्चबैंक्स को अभी यह बात अच्छी नहीं लगती है कि कैंडिडा घर के सारे काम करे। अब कैंडिडा रूम में लैंप लेकर आती है और उस लैंप को वह मॉरल की मेज पर रख देती है। फिर कैंडिडा मॉरल से कहती है कि जब वह नहीं थी तो मॉरल ने घर को बहुत बुरी तरीके से बहुत ही बैडली यूज़ किया है, मीन्स बहुत बुरी तरीके से प्रयोग में लिया था। मार्चबैंक्स को यह सुनकर बहुत दुख होता है और वो कैंडिडा से तरह तरह की इमेजिनेटिव बातें करता है कि वो कैंडिडा को नहीं चाहता कि कैंडिडा घर के काम करे और वह उसको एक ऐसी नाव देगा जिससे वह इस संसार से इस दुनिया में ऐसी दुनिया में चली जाएगी जहाँ उसे कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कैंडिडा मॉरल और मार्चबैंक्स बात कर ही रहे होते हैं तभी प्रॉसी वहाँ आती है एक टेलीग्राम लेकर। मॉरल इस टेलीग्राम का रिप्लाई करके बाहर चला जाता है। बर्जेस भी बाग में चला जाता है। मॉरल कमरे में आता है और प्रॉसी से पूछता है कि उसने उसके फादर इन लॉ या बर्जेस को बिजी ओल्ड फूल क्यों कहा। इस पर प्रॉसी दुखी हो जाती है और वह रो करके वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ कैंडिडा आती है और मॉरल से काम ना करने के लिए कहती है। कैंडिडा मॉरल को सजेस्ट करती है कि उसे अब उपदेश देना या स्पीच देना बंद कर देना चाहिए क्योंकि लोग उसके उपदेश को सुनकर अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। लोग संडे को उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं बट अगले ही दिन वो उसको भूल जाते हैं। इस पर मॉरल कहता है कि वे लोग उसकी स्पीच सुनने के लिए ही संडे को चर्च में आते हैं। अब कैंडिडा कहती है कि संडे को सभी मनोरंजन के सभी प्लेस जो हैं स्थान बंद रहते हैं, इस वजह से लोग चर्च में आया करते हैं और वो मॉरल को पसंद करते हैं और स्पेशली लेडीज़ तो मॉरल को पसंद करती हैं, इसलिए वो उसका लेक्चर सुनने आती हैं। अब यहाँ पर कैंडिडा प्रॉसी का एग्जाम्पल देकर कहती है कि वो मॉरल को पसंद करती है, इसलिए वो इतनी कम सैलरी पे इतना ज़्यादा अधिक मेहनत करती है। मॉरल को अब यह सुनकर बहुत अधिक शौक लगता है और वो कैंडिडा से पूछता है कि क्या वह किसी से जलन करती है। कैंडिडा इस पर रिप्लाई करती है कि वह यूजीन से प्यार करती है क्योंकि यूजीन को उसकी देखभाल की ज़रूरत है। अब मॉरल को बहुत बड़ा धक्का लगता है और अपने आप को संभाल कर वो कैंडिडा की अच्छाई में विश्वास करने की बात कहता है। कैंडिडा मॉरल की बातों पर ध्यान नहीं देती है और अभी भी वह मार्चबैंक्स की तारीफ में लगी रहती है। वह कहती है कि या तो बहुत ही बड़ा अन्याय होगा कि वह अपना सारा प्रेम मॉरल को दे और यूजीन को बिल्कुल नहीं, और यूजीन एक बहुत अच्छा लड़का है और वो उसे बहुत चाहता है। ठीक उसी टाइम मार्चबैंक्स और बर्जेस कमरे में आते हैं। मार्चबैंक्स अब कैंडिडा और मॉरल की जो बातचीत हो रही थी उसके बारे में पूछता है। मॉरल अब रिप्लाई करता है कि या तो मार्चबैंक्स ने जो कुछ सुबह कहा था वह बिल्कुल ठीक था या तो कैंडिडा बिल्कुल पागल हो गई है।
बर्जेस अब चीखने लगता है कि कैंडिडा पागल हो गई है। इस पर कैंडिडा बर्जेस को समझाती है और कहती है कि जब तक उसने मॉरल की बातों को ब्लाइंडली फॉलो किया, उसकी बातों को माना, तब तक उसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आई थी। बट जैसे ही उसने मॉरल के आइडियाज़ के अगेंस्ट अपना आइडिया रखा, तभी मॉरल को शॉक लगा है। अब मॉरल को दुखी देखकर, परेशान देखकर यूजीन को भी दुख होता है और वह कैंडिडा से कहता है कि उसने मॉरल को बहुत ही ज़्यादा दुखी कर दिया है। इस पर कैंडिडा कहती है कि उसका इंटेंशन मॉरल को दुख पहुंचाना नहीं था। अब कैंडिडा मॉरल से काम छोड़कर बात करने के लिए कहती है, बट उसी टाइम वहाँ पर लेक्सी आता है। लेक्सी मॉरल को बताता है कि गिल्ड ऑफ सेंट मैथ्यू बहुत दुखी हैं क्योंकि उनको मॉरल का वो टेलीग्राम मिला है जिसमें मॉरल ने वहाँ आने की बात को डिक्लाइन कर दिया है, वहाँ पे अपनी स्पीच को कैंसिल कर दिया है, डिक्लाइन कर दिया है। कैंडिडा अब मॉरल से कहती है कि उसे इसको डिक्लाइन नहीं करना चाहिए और उसको स्पीच देने जाना चाहिए। और वहाँ पे बैठे सारे लोग मींस कैंडिडा, बर्जेस, लेक्सी, ये सभी मॉरल से कहते हैं कि उसे स्पीच देने जाना चाहिए। अब कैंडिडा उसको स्पीच देने जाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करती है और यह भी कहती है कि उसके साथ सभी लोग उसकी स्पीच सुनने के लिए चलेंगे। अब सभी लोग वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब मॉरल प्रॉसी को बुलाता है और उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है जिससे कि वह उसके कुछ नोट्स ले सके, और वह बर्जेस को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है जिससे कि वो कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल से बर्जेस को मिला सके, और वह लेक्सी को भी चलने के लिए कहता है। बट मॉरल कैंडिडा से कहता है कि उसे घर पे ही रहना चाहिए और उसको घर पर ही यूजीन के साथ रहना चाहिए। एक्ट सेकंड यहाँ ख़त्म हो जाता है। एक्ट थर्ड, इट इज़ 10 in the evening. Candida and Marchbanks are sitting by the fireplace. He is reading his poems, but Candida is not listening to him. Candida says that she wants to talk to him rather listening to his poems. Eugene Marchbanks replies that he would like to go to the park, but Candida is very eager on talking moonshine, and so he amused. He wants to know if he is permitted to say wicked things to her. Candida replies that he could say what he really and truly feels, nothing beyond. He says that he knows only one word, and that word is Candida. He repeats this word many a time and says that he feels very happy as if he has come into heaven. Here Morel enters the room. Candida asks him how his lecture went. Morel replies that he never spoke better. Candida then goes out to talk to the maidservant Maria. Morel asks Eugene if he has anything to tell him. Eugene Marchbanks tells him that except for the last 10 minutes he has been reading his poems to Candida, who has shown no interest in them. Eugene further assures him that nothing happened between them, means between Eugene and Candida. He further says that he was simply enjoying being in love when Morel came in. Eugene then suggests that both of them should go on a pilgrimage and leave Candida alone in search of a worthy lover for herself, who should be some beautiful archangel, means a perfect lover. Morel says that he does not understand what a woman she is. Immediately then Candida returns. She sees Morel rather distressed. She scolds Eugene for offending or annoying her husband. She even threatens to turn him out. Morel comforts Candida by saying that it is something between two men and she should not come in between. Candida is surprised at Eugene being called a man, whom she takes a child, and insists on knowing the matter in fuller details. In the meanwhile, Burgess, Prossy and Lexi come in. They appreciate Morel. Prossy is disappointed because she could not take notes as Morel was too fast. Then all the three go away. Morel, Candida and Eugene are left in the room. Eugene tells Morel to tell everything to Candida. Candida asks what it is. She wants to talk Morel. She asks Eugene to go away, but Morel stops him. Then they talk. Both claim Candida. She then put herself to auction, saying that she would go to the highest bidder. She demands that they both tell her what they have to offer for her affection. Morel offers his strength, honesty and ability to support her, whereas Eugene says
He can only offer his weakness, loneliness, and heart's need. Candida considers their offers and tells them that she will give herself to the weaker of the two, the one who needs her most. Candida then traces the background of Eugene, who was neglected in his childhood. Even in his youth, he is lonely. It will make no difference if she chooses him or not. Talking to Morel, she says that he was a bright boy in his childhood, fully looked after and cared for, so he was a spoiled child. And in his married life, he has to depend on her, means on Candida, for everything, and without her, his life will be unhappy. She then informs them that she chooses Morel because he is the weaker of the two and he needs her more than Marchbanks does. Eugene then leaves. Morel and Candida embrace each other. And the play ends here. Now let's discuss it in हिंदी. एक्ट थर्ड, शाम के 10 बजे का टाइम है और जैसे ही प्ले स्टार्ट होता है, कैंडिडा और यूजीन फायर प्लेस यानी आग के सामने बैठे हुए दिखाए जाते हैं। यूजीन अपनी पोएम्स पढ़ रहा है जिस पे कैंडिडा कोई ध्यान नहीं देती है। वो यूजीन से कहती है कि वो पोएम्स नहीं सुनना चाहती बल्कि वह उससे बात करना चाहती है, बट यूजीन कहता है कि वो पार्क में जाना चाहता है। अब जब कैंडिडा बात करने के लिए फोर्स करती है तो यूजीन मार्चबैंक्स कैंडिडा से कहता है कि क्या वह उससे कुछ कह सकता है। इस पर कैंडिडा रिप्लाई करती है कि जो कुछ भी वह फील करता है उसे वह कह सकता है। यूजीन अब कहता है कि वह केवल एक ही शब्द जानता है और वो शब्द है कैंडिडा, और जिसको वो 1000 बार या कई बार बोल सकता है, और इस शब्द कैंडिडा को बोलने पर वह अपने आप को स्वर्ग में फील करता है, वह बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव करता है। तभी मॉरल वहाँ आ जाता है और कैंडिडा उससे पूछती है कि उसकी स्पीच कैसी गई। मॉरल यहाँ कहता है कि उसने लाइफ में अपने इससे अच्छी स्पीच कभी नहीं दी। अब कैंडिडा अपनी मेड सर्वेंट मारिया से मिलने बाहर जाती है। अब मॉरल यूजीन से पूछता है कि जब वो वहाँ पर नहीं था तो यूजीन और कैंडिडा में क्या चल रहा था। यूजीन अब कहता है कि वो पूरे टाइम वो अपनी पोएम्स ही पढ़ रहा था जिसमें कैंडिडा को कोई इंटरेस्ट नहीं आया और पिछले 10 मिनट से वह हेवनली जॉय को फील कर रहा था। अब मॉरल उससे फोर्स देकर कहता है कि जब वो नहीं था तो उन दोनों में कैसी बातचीत हो रही थी वो सच सच बताए। इस पर मार्चबैंक्स अब कहता है कि वह कैंडिडा से इतना प्यार करता है कि वह उसके साथ बैठकर ही बहुत ही अच्छा फील करता है। मार्चबैंक्स ये भी कहता है कि वो बस कैंडिडा की खुशी की कामना करता है कि कैंडिडा हमेशा खुश रहे और वो अपनी खुशी की कोई केयर नहीं करता। मार्चबैंक्स अब कहता है कि कैंडिडा को वहीं बुलाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि वह किसको पसंद करती है। ठीक उसी टाइम कैंडिडा वहाँ आ जाती है और वो देखती है कि मॉरल बहुत दुखी है। इस पर कैंडिडा यूजीन को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहती है और उसे धमकी भी देती है घर से निकालने की। अब मॉरल कैंडिडा को कंसोल करता है। मॉरल अब उसको कैंडिडा को समझाता है और कहता है कि ये मैटर मॉरल और यूजीन मार्चबैंक्स का है, मतलब 2 मेंस का है और इसमें कैंडिडा को नहीं पढ़ना चाहिए। कैंडिडा को अब शॉकिंग फील होता है कि मॉरल ने यूजीन को एक मैन कहा है जबकि कैंडिडा उसको एक बच्चा ही समझती थी। कैंडिडा अब सारा मैटर जानने के लिए फोर्स करती है। तभी वहाँ बर्जेस, प्रोसी और लेक्सी आ जाते हैं और वे सब मॉरल की स्पीच की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। प्रोसी यहाँ पर थोड़ा सा दुखी है क्योंकि वो मॉरल की स्पीच के नोट्स नहीं ले पाई थी क्योंकि मॉरल थोड़ा तेज बोल रहा था। अब ये लोग बहुत सारी बातें करते हैं, उसके बाद ये तीनों मेहमान चले जाते हैं। अब यहाँ पर केवल मॉरल, कैंडिडा और यूजीन कमरे में रह जाते हैं। अब कैंडिडा यूजीन से जाने के लिए कहती है क्योंकि वह मॉरल से कुछ बात करना चाहती थी। अब यूजीन यहाँ से जाता नहीं है और मॉरल से कहता है कि उसे अब कैंडिडा को सब कुछ बता देना चाहिए। अब कैंडिडा और भी ज़्यादा क्यूरियस हो जाती है और वो मैटर को जानने के लिए और भी ज़्यादा फोर्स करने लगती है। अब तीनों बात करते हैं और मार्चबैंक्स और मॉरल कैंडिडा पे अपना अधिकार बताते हैं। अब कैंडिडा कहती है कि वह अपने आप को दांव पर लगाती है कि जो उसको मतलब सबसे ज़्यादा चाहता है या उसकी बोली जो सबसे अधिक लगाएगा वह उसी के पास जाएगी। मॉरल कहता है कि उसके पास कैंडिडा को देने के लिए कुछ नहीं है, वह केवल उसको अपनी स्ट्रेंथ दे सकता है उसके बचाव के लिए, और वो अपनी एबिलिटी या अपनी मेहनत दे सकता है उसके सपोर्ट के लिए, उसके जीवन के लिए, और वो अपनी अथॉरिटी और पोजीशन भी दे सकता है कैंडिडा की इज्जत के लिए। अब बारी आती है यूजीन की। यूजीन कहता है कि उसके पास कैंडिडा को देने के लिए केवल उसकी कमजोरी, सूनापन और हृदय की आवश्यकता है। अब ये तीनों वहीं पर बातें करते हैं। कैंडिडा कहती है कि वह इन दोनों में से उसे चूज़ करेगी जो इन दोनों में से कमज़ोर होगा, जो ज़्यादा वीक होगा या जिसकी लाइफ में कैंडिडा के ना रहने पर
फ़र्क पड़ेगा। अब कैंडिडा यूजीन की बैकग्राउंड को ट्रेस करती है और कहती है कि उसको बचपन से ही किसी ने उसकी परवाह नहीं की और अभी जब वो यूथ हो चुका है तभी भी लोग उसको प्यार नहीं करते हैं और अगर कैंडिडा उसको नहीं अपनाती है तो यूजीन पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मॉरल के बारे में कैंडिडा कहती है कि मॉरल बचपन से ही एक बहुत ही अच्छा बच्चा था, उसकी बहुत ज़्यादा केयर हुई थी और उसको बहुत सारा प्यार मिला था, जिसकी वजह से वह एक बिगड़ा हुआ बच्चा बन गया था। और जब उसकी शादी कैंडिडा से हुई तो वो कैंडिडा पे पूरी तरीके से आश्रित हो गया, यानी डिपेंड हो गया। अब जबकि मॉरल कैंडिडा पे डिपेंड हो गया है तो उसके बिना, कैंडिडा के बिना मॉरल दुखी रहेगा और मॉरल अपने काम को नहीं कर पाएगा, वह वीक है। इस तरह से मॉरल दोनों में से वीक है और उसे कैंडिडा की ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरह से कैंडिडा मॉरल को चूज़ करती है और वह कहती है कि वह मॉरल को पसंद करती है, यूजीन को नहीं। अब यूजीन वहाँ से चला जाता है और मॉरल और कैंडिडा एक दूसरे को एम्ब्रेस करते हैं और यहीं पर प्ले ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।